अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं? मेरी शादी हुई है बस जी सारिम को एक ही बात आती है। हाँ जी, सारिम को एक ही बात आती है। तो जी जो हमारे चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया कमेंट करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगी आसिफ के बकौल उनकी ज़बानी, फिर बात करते हैं। ਵੀਡੀਓ ਬਿਆਨ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਲਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਦੀਕ ਦੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਨਾ ਆਪਿਊਜ਼ਮਾ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸਦੀਕ ਦੋਵੇਂ ਬਹਿ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਿਆਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਖਤਰਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਉਹ ਉਜ਼ਮਾ ਦੇ ਵਾਲਿदैन ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਾਂ ਤੇ ਉਜ਼ਮਾ ਦੇ ਵਾਲਿदैन ਉਹ ਕਲਿੱਪ ਲਾਣਗੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਆ ਉਹ ਲਾਣਗੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਣਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਕੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਸਮਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਤੋਂ ਔਰ ਮੀਆਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿदैन ਤੋਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ, ਉਹ ਕਲਿੱਪ ਸਦੀਕ ਦੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸਦੀਕ ਦੇ ਘਰ ਬਣੀ ਆ ਉਸਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਇਹ ਬਿਆਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਕਲਿੱਪ ਉਸਮਾਨ ਦੇ ਵਾਲਿदैन ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਉਹ ਕਲਿੱਪ ਜਾਂ ਤੇ ਉਸਮਾਨ ਦੇ ਵਾਲਿदैन ਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸਦੀਕ ਦੇ ਘਰ ਬਣਿਆ ਉਹ ਸਦੀਕ ਕਲਿੱਪ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪੀ ਉਸਮਾਨ ਦਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੈਂ ਕੰਫਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਔਰ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਆ, ਐਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਉਜ਼ਮਾ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਭਾਈ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੰਬੀ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪੀ ਉਜ਼ਮਾ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪੀ ਉਜ਼ਮਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਆਪੀ ਉਜ਼ਮਾ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਮਾਮ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ 4 ਤੋਂ 5 ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਉਹ ਚੈਨਲ ਸ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਬਕੌਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਸਰਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤਮਾਮ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਚੈਨਲ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ ਕੋ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਚੈਨਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ ਕੋਲੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਸੁਬਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, सूरज भी तलू हो चुका है जी। और मेरी तैयारी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह उठे हैं, नमाज़ पढ़ी है जी, नमाज़ पढ़ के तैयारी मेरी हो गई है जी। अज मैं जा रहा था अपनी मोटरसाइकिल से जी, और शाहिद भाई होने कोले उतों अगे फिर देखते हैं भी एक आबद भी कार लैके आया है, शाहिद भाई का छोटा भाई, और देखते अगे कि बनता ही अल्लाह खैर करे जी। अच्छा जी, अदालत गए हुए थे और आ गए वापसी घर जी। और राशिद भाई से, शाहिद भाई से, नदीम भाई, साजिद, आबद भाई और नाल साढ़े चाचू से, वो चले गए हुए उधर चाबी लैन वास्ते। शाहिद भाई के घर इधर आए पहुँचे हैं जी। और बच्चे गए हुए उधर राशिद पेशी सी शाहिद भाई का जोड़ा केस ही ना, जोड़ा कि शाहिद भाई का इन्होंने पिछले दिन एक केस किया FIR हुई सी, जिद शाहिद भाई के उत्ते कातलाना हमला किया गया जी। उस ते अल्लाह पाक भी माफ़ कर ही दिंदा ना इंसान नूं। इंसान इन्ने गलतियां कर दिंदा, इन्ने गुनाह कर जांदा ते अल्लाह उन्नू भी तो बख्शी दिंदा ना। साडे वगैरह गुनाहगारां नूं, मूँह कालियां नूं अल्लाह पाक सानू भी बख्शी दिंदा वा।
ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਫੇਰ ਚਲੋ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਗੁੰਨ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਤੋਂ ਹੋਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਨਬੀਆਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਨਬੀਆਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਵਗਰੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਜੇ ਬੰਦੇ, ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ। तो जी ये सारी सिचुएशन देख लीजिए, सुन लीजिए, जहाँ आसिफ वीर आज शानवीर के साथ गए हैं, जो इन पे कातलाना हमला हुआ था और उस्मा बीबी की वजह से उसके हस्बैंड पे कातलाना हमला हुआ था और उसकी तारीख थी आज, और वो उधर गए हैं तो शायद उनको आगे पेशी मिली है, कौन सी डेट वो इधर बता रहे हैं। तो अभी जो है उस्मा की डेट 15 है, जो उसने खुला का केस दायर किया, वो आगे क्या बनता क्या नहीं बनता। तो जी डिग्गिया खोते तू ते गुस्सा को मारते, मतलब कि ये मैं आपको इसकी उर्दू ट्रांसलेट करके बताती हूँ कि गिरा गधे से और जो उसका मालिक था उस पर गुस्सा आ गया कि तेरा गधा था, तो इस वजह से ये चीज़ हुई आज मेरे साथ। तो मुझे ना मेरी एक बड़ी अच्छी दोस्त है, बहन है, उन्होंने मुझे एक लिंक भेजा, जब मैंने देखा तो वो शादवीर की सिस्टर थी यास्मीन आपी, जो पिछले दिनों मुझे मेरी तारीफ़ें कर रही थी कि माँ जी आप हमारे लिए आवाज़ उठाएं। अब थोड़ी सी सच्ची बात की तो उनको इतनी कड़वी लगी और वो बोल रही हैं और इतना कुछ सुना के तो बाद में कह रही जी आप हमसे बड़े हैं, आपके भी भाई होंगे, बहनें होंगे, रिश्तेदार होंगे। ये तो जी कभी आप मेरी फैमिली व्लॉग पे भी जाकर देख लें, आप इधर भी देख लें कि मेरे भाई भाभियाँ, बेटे, बच्चे, बच्चियाँ, कभी किसी की लड़ाई डिस्कस, कभी किसी का अगर हमने कुछ दिखाया है तो एक अच्छा पैगाम देते, एक अच्छा मैसेज देते हैं कि जो हमें अपना यूट्यूब फैमिली वालों को देना चाहिए कि हम अंदर गंदे होंगे जी, अच्छे होंगे, बुरे होंगे, जो भी है, लेकिन हम यूट्यूब को अपना फैमिली यूट्यूब फैमिली को एक अच्छा मैसेज देना चाहते हैं कि खुश उसलूबी के साथ, अच्छे तरीके के साथ अपने रिश्तों के साथ रहो, दयानतदारी के साथ, जो हमारा मज़हब है उसको हम फॉलो करते हुए अपनी एक वीडियो बनाते हैं। यहाँ भी तो आपकी तो छितरौल बड़ी दुनिया कर रही है, ज़रा जाके इरम आपी और उधर हमारी ज़ारा जो बैठ के बातें कर रही हैं, या हमारी सादकाबाद व्लॉग हैं सिस्टर, वो कितनी अच्छी आप लोगों पे एक दे रही हैं रिएक्शन, और भी बड़े रिएक्शन वाले आ जाएंगे, लेकिन मैंने तो कभी ऐसा रिएक्शन दिया ही नहीं जो आपको मेरी बातें इतनी बुरी लगी हैं कि जी। हाँ ये आपकी की बातें की हुई थी आज से तकरीबन एक हफ्ता पहले, आपने आगे कहा तेरे वर्गी नू, हाँ तेरे वर्गी नू रखदा कौन है, इसको हम लोग तो कभी भी नहीं रखेंगे, इसके घर वाले रखते हैं तो रखें, हम मेरा भाई कभी भी नहीं रखेगा। भाइयों ने भी कहा, इन्होंने भी कहा, तो आप रखें ना रखें, देखें ना, हमें आपको रखने में कोई मसला है कि आप ना रखें, ना कहा है कि अगर आपको ये बड़ा काम नहीं ना लग रहा तो पता नहीं इससे बड़ा कौन सा आप कहती हैं। तो वो कह रही है ना, ये कोई इतनी बड़ी भी बात नहीं है, बड़े बड़े लोग गुनाह करते हैं और ना ये कोई इतना बड़ा भी गुनाह नहीं है। उन्होंने मेरी भाभी को वर्गलाया, ये किया वो किया, उसके दिमाग को ये कर दिया। देखिए जी, आपकी वो भाभी आप लोगों ने लेके आनी, आपके लिए ये बड़ा गुनाह नहीं है, आम सी बात है। हमारे लिए तो ये गुनाह कबीरा में आता है कि एक कुंवारी बच्ची को माँ बाप या कोई नहीं छोड़ता, अगर वो किसी के साथ पसंद भी करती है या जो भी है तो माँ बाप छितरोल भी करते हैं, तो फिर कहते हैं जाओ जी घर वाले भेजो, रिश्ता लैके आते, फिर असीं तुहानूं इज्जत नाल रिश्ता देवांगे तो शादी कर देवांगे। ठीक है, सुख है दुख है, तू फिर जाके खुद ही उधर ना फेस करती रहेगी ये। लेकिन ये इतनी बड़ी बात आप लोगों के लिए कुछ नहीं है 5 बच्चों को छोड़ के जाना, या जो आप लोगों ने इतना कुछ बताया है, इतना कुछ बताया है, तो क्या आप क्या सोच रहे हो कि आप इरम को के लिए नहीं बोलोगे, ज़ारा के लिए नहीं बोलोगे, मैं पाकिस्तान में बैठी हूँ या किसी और का, सिर्फ मेरे लिए बोलोगे तो क्या मेरे पीछे कोई बात नहीं करेगा? मेरे पीछे भी बात करने वाले आ जाएंगे सारे। अगर मैं इरम की सपोर्ट ना भी करे, खुद बहुत बात करने वाले, लेकिन मैं अगर इरम की सपोर्ट बनती हूँ ना कि इरम को, अच्छा आप आज बड़ा आ गई हो, उस्मा भाभी के लिए आप बोलने आ गई हो, आपने एक भी वीडियो बनाई है इरम के लिए? इरम आपी के लिए पता क्यों नहीं बात करते? क्योंकि वो इरम आपी के पास सबूत है ना लेने देने। हाँ जी, और बड़े हैं जो बताया हुआ ना कि क्या क्या करतूत थे उस्मा के, कब से वो उसके साथ रिलेशन में थी, क्या था क्या नहीं था। अभी तक तो सुन ले आसवीर, एंड तक कह रहा वो नहीं आ रही। अभी तो 15 कल आप लोग देखते हैं बनता कि अभी तो खुला का केस दायर है, अभी तो उसने आप लोगों के साथ सुलह, आप 60-60 हज़ार रुपया वो लगा रहे हैं, माँ बाप आप लोग 10-10, 15-15 हज़ार रुपया हर पेशी पे लगा रहे हैं, और वो आप लोगों को मिलना पसंद नहीं कर रही। इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है। तो उनके जितने इधर बताया गया जी उनके 5-6 भाई हैं, तो
अगर शबीर ने बात की है ना, तो मैंने शबीर की बात को इसलिए अप्रिशिएट किया कि हम लोगों को जब बीच में थोड़ा थोड़ा इनको लचक आई ना कि हमारी शायद सुलह हो जाए, तो इन लोगों ने इरम को झूठा करना शुरू कर दिया, मुझे झूठा करना शुरू कर दिया। तो इस चीज़ पे मैंने उसको अप्रिशिएट किया कि उस बंदे ने आके सच बताया, बहन के साथ वो लड़ा है कि जो हुआ है शादवीर के साथ गलत हुआ है और मैं शादवीर के साथ हूँ। और बहन ने भाई को गलत कहा, भाई ने बहन को गलत कहा, तो वो जी आपके रिश्तेदार हैं, मुझे पता है वो आपके सौतेले मामू हैं। और मुझे ये भी बड़ा पता है जब शुरू में लाहौरी वीर का कोई चैनल नहीं था और वो बेचारा किसी घर में वो पट्ठे पुट्ठे काटता था और बड़ा कुछ करता था, उसको लेके आया था गफ़ार और उसकी वालदा साहबा को ला के लोगों से उसने कुछ पैसे लेके दिए थे और उसने बताया था कि ये सौतेले भाई बैठे हुए हैं, इन्होंने कभी भी हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं किया। ये आप लोगों के अपने मैटर हैं, आप लोगों की अपनी अंदर की बातें हैं, उन्होंने आपके साथ क्या किया या आप लोग फिर जवान हुए आपने क्या किया, हमें तो इस चीज़ से लेना देना ही कोई नहीं है। बात तो ये जो उज़मा के इधर मैटर चल रहा है उस बात पे देखे जी, आप कह रही हैं कि अल्लाह तो नहीं ना छोड़ता, अल्लाह तो हमारे साथ है, बहन भाई कह रहे हैं बहन भाई ना सपोर्ट बने, तो ये वो तो देखे आपको अगर कोई 100 आ रहे हैं ना ये कमेंट के आप उसको ना लेके आए, तो कोई 5-7 आपके हाथ में भी हैं जो कह रहे हैं कोई बात नहीं माफ़ कर दें लेके आए। आप भी कह रही हैं अल्लाह ताला भी माफ़ करता है, आप कर दें ले आए। सारा ज़माना यूट्यूब पे नहीं है, सारा ज़माना यूट्यूब से नहीं खा रहा, या हम लोग सारी ज़िंदगी हो गई कि यूट्यूब से नहीं कमा रहे थे। आप लोग भी शुरू से इतने बड़े जवान हुए, क्या कोई 4-5 साल हुए शादवीर को चैनल बनाए और आप लोगों को। तो अभी तो मैं बातें सारी आपके साथ वो डिस्कस करूँगी ना जो अपने उसने बताई आसिफ वीर ने, कि क्या जो लोग उससे वो वीडियो मांग रहे हैं, जो उसने बयान रिकॉर्ड करवा के दिया और उसने बताया कि जिस जगह पे इसने आके धमकियाँ दी हैं 52 वालों को और 51 वाले मुझे, तो वहीं उसने खड़े होकर 19 सदीक के घर खड़े होकर उन्होंने रिकॉर्ड करवाया जहाँ उसने कहा मुझे शाद के भाइयों से ख़तरा है जान का, मुझे अपनी माँ बाप भाई से ख़तरा है। और वो उनके घर तक पहुँच भी गई और उसने कहा कि वो मैं नहीं लगा सकता, वो लगाएंगे उसके माँ बाप वाले जो जिनके पास है, ये मेरे पास नहीं है जो मैं लगाऊं, या आगे देखते हैं कि होता क्या है। अभी तक उसने मिलने से इनकार कर दिया और वो उस फैमिली को शायद मिलती होगी, हमें नहीं वो मिल रही। तो अभी तो आपके हाथ में भी कुछ नहीं है, अभी तो आप लड़ने आ गए हो, कभी मेरे साथ या जो कमेंट कर रहे हैं उनके साथ, या मतलब कि शुमाइला ने बताया था कि वो कितने लोग रहते हैं, या वो गैर महरम था तो वो उधर गई है, तो हम अंधे तो नहीं, हमें भी पता है कि गैर महरम है। सुतेला मामू ने भी सिर्फ आपकी की हुई बातें की, क्योंकि हम लोग तो ना चक 52 गए ना चक 53-54 गए, हमें तो पता ही चक भी नहीं गए, हमें पता ही नहीं है। आप वाईटी पे आके बात की कि कहाँ गए, कौन गया, कैसे लेके गया, किसने बुलाया, कितने दिन बाद, कितनी दफ़ा गई, ये आप लोगों ने बात की, तो इस पे बात हुई। अच्छा बरेगी मामा, अभी तक फिर इनको कोई ना उम्मीद थोड़ी सी नजर आ गई है तो उसकी फेवर में ये फिर लड़ने आ गई है। अच्छी बात है, अगर वो नहीं ना आती फिर दोबारा इनकी वीडियो देखिएगा कि फिर यही उठ के कीड़े डालेंगे कि वो ये थी, वो ऐसी थी, वो वैसी थी। अल्लाह ताला करे जी बच्चों को उसकी माँ मिल जाए और अब वो हिदायत वाली ज़िंदगी लेके आए और नेक नीयती से बच्चों के साथ भी आए और शोहर के साथ भी आए और आप लोगों के भी साथ है। वो आपकी भाभी है, आपको पका के दे ना पका के दे, हमने कौन सी उसकी पकी जाके खानी है। तो अभी आप सारी बातें आसिफ वीर की सुने ना, उसने क्या कहा है कि फिर लोग उसको टारगेट कर रहे हैं। उसने कहा मुझे लोग टारगेट करते हैं और उनको होती है तकलीफ जो मेरे अपने ख़ानदान वाले कि मैं इधर सच क्यों बता रहा हूँ। तो जाहिर है वो सच्ची बात करता है तो लोग उसकी फेवर कर रहे हैं, लोग उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो आप लोग इधर आके बैठ के गोल गोल बातें घुमाते हो, तो हमें भी पता है घुमा के आप बातें करते। तो बीमार है, शादवीर हुआ है लोग कह रहे हैं, तो टेंशन की भी बात होगी। लेकिन वैसे जिस तरह आपको पता है बारिशें एकदम हुई, ज़ुकाम नज़ला और जिस तरह डेंगू फिर फैल रहा है। अल्लाह ताला सेहत वाली ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अगर तो वो आ जाती है ठीक है, अगर वो नहीं आती तो फिर भी तो शादवीर ने उसको फेस करना है ना। तो बाकी ये कहते हैं ना जो शादवीर ये मक्खी देख के निकल रहा है तो फिर हम कौन होते हैं रोकने वाले। तो हम लोग जैसे हम कह रही हैं हम तो एक बात ही करेंगे ना, बाकी तो ऑडियंस की मर्जी है कि वो उज़मा के साथ प्यार करती है या, क्योंकि उज़मा को भी पता चल गया मैं डीफेम हो चुकी हूँ। अगर मेरा भाई भी मुझे ला के रखता है तो मैं वाईटी पे नहीं आ सकूँगी। अगर शबीरे के साथ वो क्या मुनीर के साथ भी जाती हूँ तो फिर भी मैं डीफेम हूँ, मुझे फिर भी कोई नहीं देखेगा। तो फिर यही है कि हट के मैं वापस आ जाऊँ, शादवीर के पास ही आ जाऊँ। चलो हो सकता है कि मुझे वाईटी फिर बर्दाश्त कर ले, या फिर ये झूठ हम तो वो आपके झूठ लेके बैठे हुए जो आगे आपने बोलने हैं और उसको फिर सच्चा करना है उज़मा को। हम लोग तो इसलिए ये इन लोगों की चीज़ें उठा के रख रहे हैं कि हमें झूठा करने की बजाय आप लोग झूठे हो और आप लोग मानोगे
کہ وہ کر کے گئی تھی اور وہ اس نے آ کے معافی مانگ لی تو ہم نے معاف کر دیا. تو آپ کی مرضی, آپ کا دل اتنا بڑا ہے تو آپ معاف کر رہے ہو. تو ہو سکتا ہے یہ آپ کے لیے اتنا بڑا گناہ نہ ہو, ہمارے لیے یہ گناہ ہو کہ ہم تو اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب آپ ایک مرد کے نکاح میں ہو تو آپ دوسرے کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتے ہو. مرد ہے وہ بھی شادی کر سکتا ہے, بے غیرتی بے شرمی وہ بھی نہیں کر سکتا کہ وہ عورت کو لے کے بھگا کے لے جائے یا اس کے ساتھ ہوتا ہے کہ یاریاں یارانے لا کے بیٹھ جائے. ایسا تو کوئی سین ہمارے مذہب میں ہے ہی نہیں. اگر پھر ہم نے یہی سارا کچھ کرنا تو ہمیں مسلمان ہونے کا کوئی بینیفٹ ہے؟ آپ لوگ مجھے سارے کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ ہمیں اللہ کا دین, اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے حکم, اور آپ کہہ رہی ہیں جی ولیاں پیغمبرات ابھی وقت اندر استغفر اللہ توبہ نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ ولیوں آپ کو پیغمبروں پہ پتا اگر آپ کی یہ بات پکڑی جائے تو آپ پہ کتنا اللہ معاف بڑا کرے. لگ آپ سکتا اپنے ہے. یہ گناہ جو عظمیٰ بھاگ گئی ہے, یہ 4-5 بچے چھوڑ کے گناہ کر گئی ہے, ایک اور پھر رہی ہے کبھی ادھر, تو آپ یہ گناہ کو ولیوں پیغمبروں کے ساتھ ملا اور رہے یہ ہیں. اسی طرح رجب کیسے پکڑا گیا, رجب نے بھی ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے نا کون سی بات کس طرح کرنی ہے. اس نے بڑی ایسی کچھ باتیں کی تھی جس کی وجہ سے جب وہ وائرل ہوا تو اس کی آج سے 4 سال پرانی ویڈیوز نکال کے اس کو پکڑا ہے. تو باقی جو ہمارے آقا نے سختیاں سہی ہے وہ تو ہمیں صرف صبر دینے کے لیے ہوا. تو ہماری تو بی بی فاطمہ الزہرا جب مطلب قدم مبارک رکھا کرتی تھی تو آگے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا ہوا کرتے تھے, تو بعد میں ان کے قدم مبارک پہ حضرت امام حسن امام حسین قدم مبارک دیا کرتے تھے کہ بی بی کے قدموں پہ کسی کے قدم بھی نہ آئے. اور وہ اپنے ہسبینڈ کے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا علی کے ہاتھوں میں ہی وہ مطلب کہ وفات پا گئی اور ان کی تدفین ہوئی, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 ماہ کے بعد ہی ان کی مطلب کہ ان کا وصال ہو گیا تھا. تو آپ کیوں ولیوں پیغمبروں کو بیچ میں کیوں لے کے آ رہی ہیں؟ آپ نے یہ کہہ دیا نا کہ ہم گناہ گار ہیں, ہم پتہ نہیں کتنے گناہ گار, تو ہم تو خود بڑے گناہ گار ہیں جی, لمحہ لمحہ پہ گناہ کرنے والے. تو انہوں نے بھی یہاں پہ فتویٰ لگا. تو یہ بات یہ ہے کہ گناہ میں فرق ہوتا ہے. اب اس گناہ کو ولیوں پیغمبروں کے ساتھ جوڑ کے بیٹھ گئی ہیں, حد ہو گئی. آپ تھوڑا سا عقل کریں, تھوڑا سا آپ اتنا دفاع کرنے آ گئی ہیں بھابھی کے لیے, اتنی محبت جاگ اٹھی آپ کی کہ آپ مطلب اس کو کہاں لے کے چلی گئی. بیچ میں آپ لے آئے ہیں. کچھ تھوڑے سے ہوش کے ناخن لیں. آپ کے بھائی, مجھے پتا ہے لوگ ٹارگٹ کر رہے ہیں, جہاں آپ ادھر بھی بیٹھ کے جب بھابھی کے خلاف باتیں کر رہی تھی تو لوگ آپ کو کہہ رہے تھے کہ تینوں بھابیاں آپ لوگوں نے اجاڑی ہیں. تو بولنے والے کی کبھی زبان نہیں روک سکتے. ہم جسٹ ایک ویڈیو بنا رہے ہیں اس لیے آپ لوگوں کو بڑا اعتراض ہو رہا ہے. تو جو ادھر بیٹھ کے جا کے سنیں نا ذرا, ٹارگٹ کر رہی ہیں اور وہ حق سچ پہ بات کر رہی ہیں. اور ارم آپی کے لیے آپ کیوں نہیں بول رہی ہو؟ ارم آپی کو اتنی گالیاں دی گئی ہیں, کمنٹوں پہ گالیاں دی جاتی ہیں. آپ کے اپنے رشتہ داروں نے ان کے خلاف گالی گلوچ کی ہے, بدتمیزیاں کی ہیں. آپ کی تو وہ بہن کو بھی خرچہ دیا کرتی تھی, وہ عظمیٰ کو بھی خرچہ دیتی تھی, وہ شادویر کو بھی خرچہ دیتی تھی. آپ ہی کی ویڈیو پہ آ کے اس کو اتنا برا بھلا کہا جاتا ہے. تو آپ کیوں نہیں بول رہی ہیں؟ آپ اس وقت ارم آ گئی ہیں, عظمیٰ کی دفاع میں آئی ہیں, تو آپ کیوں ارم کے لیے نہیں بولی؟ تو پھر جب بندہ حق سچ پہ کھڑا ہو نا, پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا. تو ہم نے تو کہیں بھی نہیں کہا تھا کہ ہم شاہد ویر کی سپورٹ نہیں بنیں گے, لیکن اگر شاہد ویر بیوی کو لے کے آتا ہے اور پہلے خود گندا کیا ہے, جھوٹا کیا, تو ہم اس چیز کو نہیں ادھر عام کریں گے. ہماری مرضی, ہم لوگ نہیں شاہد ویر کی سپورٹ بنتے. تو شبیر سے ہمارا کیا لینا دینا ہے, طاہرہ سے ہمارا لینا دینا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. آپس میں گندیاں کر رہے ہیں, وہ بہن کو گندا کر رہا ہے, بہن اس کو گندا کر رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے میرا ہسبینڈ بیچ میں نہیں ہے, وہ کہہ رہا تیرا ہسبینڈ سارا کچھ کروانے والا ہے. باہر کے ملک سے جو بہنیں دیتی تھی وہ کھلا گئی, آپ کی بھابھی کھلا گئی. منیرے لوگوں کو تو آپ کے رشتہ دار کہہ رہے ہیں, ہم تو نہیں کہہ رہے. آپ کے بچوں کا حق, آپ کے بھائی کا حق, سارا وہ رکشوں کے پیسے پوسے لے کے جو بھاگ گئی ہے, تو اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے. تو جی آگے سے تھوڑا سوچ سمجھ کے ویڈیو بنائیے گا. تو بیچ میں اللہ کے نبی ولی پیغمبر کسی کو بیچ میں لانے کی ضرورت نہیں. ہم خطا کار بندے ہی بہت ہے. پہلے نیکسٹ ویڈیو میں ہم نے ڈھیر خیال رکھے گا, تو ہمیں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.